डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल फ्लूइड डायनेमिक्स की इस कक्षा के पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन 2 डायमेंशंस प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत लैग्रेंजेस स्ट्रीम फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम 2 डायमेंशनल सोर्सेज और सिंक्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। A point is called a 2-dimensional simple source if liquid flows out from this point radially and symmetrically in all directions in the xy plane. And on the other hand, a point is called a sink if there is an inward radial liquid flow towards that point from all directions, that is known as sink. Now, what is strength of a source? Strength of a source is defined in terms of total flow per unit time. Thus, if 2 pi m is the volume of the fluid flowing per unit time, then m is called the strength of the source. Sink is a source of negative strength, that means minus m. At source, there is creation of the fluid, and at a sink, the annihilation of the fluid. Now, what is complex potential for a source? So, consider a source of strength m at the origin. We have to determine complex potential W at a point P whose coordinates are r theta. Due to this source, the velocity at P due to source is purely radial. Let this velocity be symbolically qr. Then amount of the liquid flowing out of circle of radius r surrounding the source at O is 2 pi r into qr. Hence, by definition of strength, we have 2 pi r qr is equal to 2 pi m. This implies that qr is equal to m by r. Now, u is horizontal component of velocity. Rather, u is component of velocity along x-axis and v is component of velocity along y-axis. So, u is equal to qr cos theta, that means m by r cos theta, and similarly v is equal to qr sin theta, that is m by r sin theta. Now, we know that dw by dz is equal to minus u plus iota v. So, substituting the values of u and v, we get m by r into minus cos theta plus iota sin theta, or this can be write down as minus m by r cos theta minus iota sin theta, and cos theta minus iota sin theta can be write down as e raised to minus iota theta. So, we have dw by dz as minus m by r e raised to minus iota theta, or this can be write down as dw by dz is equal to minus m upon r e raised to iota theta, or this is minus m by z, because z is x plus iota y and x plus iota y can be write down as r e raised to iota theta, or this can be write down as dw is equal to minus m by z of dz, and after integration we get w is equal to minus m log z, neglecting constant of integration, and suppose this is equation number 1. Deductions: if the source is at a point z equal to z1 in place of z equal to 0. So, this is complex potential for doublet. अब हम देख रहे हैं कि अगर सोर्स z equal to 0 की जगह z equal to z1 पर प्लेस हो तो क्या होगा? Then by shifting the origin we get w is equal to minus m log of z minus z1, and this is the required expression for w in this case. Second deduction is complex potential for several sources. If sources of strengths m1, m2, m3 etc. are situated at points z equal to a1, a2, a3 and so on, then complex potential is given by w is equal to minus m1 log of z minus a1. ये फर्स्ट डिडक्शन के माध्यम से लिया हमने, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें ले रहे हैं. यहाँ एक सोर्स था, यहाँ ज़्यादा सोर्स हैं, तो फर्स्ट सोर्स के लिए माइनस m1 log of z minus a1, सेकेंड के लिए माइनस m2 log of z minus a2 एंड सो ऑन.
Now W is equal to 5 plus iota psi. So this can be write down as 5 plus iota psi is equal to minus m1 log of z minus a1 can be write down as r1 e raised to iota theta 1. Similarly minus m2 log of r2 e raised to iota theta 2 and so on. Or this can be write down as minus m1 log of r1 plus iota theta 1 minus m2 of log of r2 plus iota theta 2 and so on. Now equating real and imaginary parts, we have phi is equal to minus m1 log of r1 minus m2 log of r2 minus and so on, and psi is equal to minus m1 theta 1 minus m2 theta 2 and so on. So where r1, r2 etc. are the distances of a point P from the points z equal to a1, a2 and theta 1 and theta 2 are the angles these distances makes with a fixed direction. Next is two-dimensional doublet. What is this? A doublet is defined as a combination of source and sink at a small distance delta s apart such that the product m into delta s is finite. Sink minus m means sink of strength minus m. Now what is strength of doublet? If the product m delta s equal to mu is equal to finite when m tends to infinity and delta s tends to 0, then mu is called strength of the doublet, and the line delta s is called the axis of the doublet and its direction is taken from sink to source. Let A and B be the positions of the source and sink at a distance delta s apart. Let P be any point where AP is equal to R and BP is equal to R plus delta R, and angle PBA is theta. AN is perpendicular from A to PB. Then BN is equal to PB minus PN or R plus delta R minus R. So we have BN as delta R. डेल्टा एस बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए पी एन को हमने आर के बराबर लिया है. सो इन दिस ट्रायंगल ए बी एन वी गेट कॉस थीटा एज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस. नाउ द वेलोसिटी पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस डबलेट और दिस कॉम्बिनेशन वी हैव फाई इज इक्वल टू माइनस एम लॉग आर. ये सोर्स के लिए, देन माइनस ऑफ माइनस एम लॉग ऑफ आर प्लस डेल्टा आर, ये सिंक के लिए. सोर्स के लिए हो गया माइनस एम लॉग आर और सिंक माइनस एम है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस और डिस्टेंस है आर प्लस डेल्टा आर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर प्लस डेल्टा आर. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एम लॉग ऑफ आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर और एम लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा आर बाय आर और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के फॉर्मूले से जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा आर वी गेट एम डेल्टा आर अपॉन आर. सो वी हैव फाई इज इक्वल टू एम डेल्टा आर अपॉन आर. नाउ कॉस थीटा हमने निकाला था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस, सो डेल्टा आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा. सो फाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा बाय आर, और दिस कैन बी राइट डाउन एज म्यू कॉस थीटा बाय आर एज एम इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू म्यू. And this is the strength of the doublet when m tends to infinity and delta s tends to 0. So we get phi as mu cos theta by r. Further, since we have del phi by del r is equal to minus 1 by r del psi by del theta, ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे. तो फाई की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड राइट साइड एज इट इज 1 अपॉन आर डेल शाई बाय डेल थीटा. इसको हम यूँ लिख सकते हैं डेल शाई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू कॉस थीटा बाय आर, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है शाई इज इक्वल टू माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन आर प्लस फंक्शन ऑफ आर. अगेन वी हैव 1 अपॉन आर डेल फाई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल शाई बाय डेल आर. अब हम फाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है माइनस म्यू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और शाई जो हमने निकाला था उसको जब हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो राइट साइड हमारे पास है माइनस एज इट इज़
और यहाँ से आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम लिख रहे हैं, तो ये है म्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर। तो इस इक्वेशन से हमें प्राप्त होता है एफ डैश आर इक्वल टू 0 और दिस रिजल्ट गिव्स एफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Therefore, psi is equal to minus mu sin theta by r. The constant is merged in psi. So we get phi as well as psi. Hence, complex potential at P is W is equal to phi plus iota psi, or this can be write down as mu cos theta by r minus iota mu sin theta by r. हमने यहाँ phi और psi की वैल्यूज़ रखी हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं mu by r इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को हम लिख रहे हैं ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, और इसको इस तरह लिख सकते हैं म्यू अपॉन आर ई रेस टू आयोटा थीटा, और दिस इज इक्वल टू म्यू बाय जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हुआ डबलेट का। सो दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट द फाई प्लस आयोटा शाई मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ जेड। नाउ streamlines are given by psi is equal to constant. So we substitute the value of psi, that is mu sin theta by r is equal to constant, or this can be write down as sin theta by r is equal to constant. Constant को हम c मान लेते हैं, तो हमारे पास है sin theta is equal to r c, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r sin theta is equal to r square c। तो इसको हम कार्टेशियन में बदलें तो हमारे पास है y is equal to c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस रिजल्ट से हमें नज़र आ रहा है कि स्ट्रीम लाइन्स आर द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। नेक्स्ट इज डबलेट इंक्लाइंड एट एन एंगल विद एक्स एक्सिस, कि यदि कोई डबलेट एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए हो तो उस केस में W यानी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा। तो लेट ए बी द लाइन ऑफ द डबलेट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल एल्फा विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमें थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा रिप्लेस करना है। तो हमने अभी W का मान ज्ञात किया था म्यू बाय आर ई रेस टू आयोटा थीटा, यहाँ हम थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास है W इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर ई रेस टू आयोटा इंटू थीटा माइनस अल्फा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं म्यू ई रेस टू आयोटा अल्फा अपॉन आर ई रेस टू आयोटा थीटा, या म्यू ई रेस टू आयोटा अल्फा अपॉन जेड, और यही डबलेट हो गया, आई मीन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हुआ डबलेट का जब वह एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है। नेक्स्ट इज डबलेट एट ए पॉइंट अदर देन द ओरिजिन। यहाँ हम ले रहे हैं कि डबलेट ओरिजिन पर भी नहीं है, और जो डबलेट की पोजीशन है वो एक्स एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि डबलेट भी एट द पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स में आ रहे थे, इसलिए हमने एंगल को चेंज करके गामा कर दिया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए अल्फा बीटा, और एंगल जो डबलेट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना रहा है वो है गामा। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो जेड की वैल्यू ए पर क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और उसको हम सिम्बॉलिकली स्मॉल ए मान लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यू होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, वो डबलेट अगर एक्स एक्सिस से गामा कोण बनाए तो उसकी वैल्यू होगी म्यू ई रेस टू आयोटा गामा अपॉन जेड, जबकि डबलेट ऑरिजिन पे हो। अब यहाँ डबलेट ऑरिजिन की जगह किसी और बिंदु पर है, ए पर है, तो हम उसको सिंबॉलिकली जेड डैश मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा दिए हुए हैं, ले रखे हैं, और जो पी है उसके कोऑर्डिनेट्स ए को ऑरिजिन मानते हुए एक्स डैश वाई डैश मान लेते हैं। तो जेड डैश की वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश, यानी डब्ल्यू हुआ हमारा म्यू ई रेस टू आयोटा गामा अपॉन एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश, where x dash y dash are the coordinates of P with respect to A as origin। अब अगर P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जबकि O ऑरिजिन माना जाए, तो उस केस में हमारे पास है x डैश की वैल्यू हो गई x माइनस अल्फा और y डैश की वैल्यू हुई y माइनस बीटा। तो ये x डैश और y डैश के मान जब हम यहाँ रखेंगे तो W का मान है हमारे पास म्यू ई रेस टू आयोटा गामा अपॉन x माइनस अल्फा प्लस आयोटा y माइनस बीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं म्यू ई रेस टू आयोटा गामा अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और इसको इस तरह लिख सकते हैं म्यू ई रेस टू आयोटा गामा अपॉन जेड माइनस अल्फा। तो अगर डबलेट ऑरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पे है और वो एक्स एक्सिस से गामा एंगल बना रहे हैं, तो उस केस में उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल म्यू ई रेस टू आयोटा गामा अपॉन जेड माइनस ए होगा।